ایوان صدر پر ہوگا کس کا راج؟ فیصلہ ہوگا آج۔ آصف زرداری یا محمود خان اچکزئی کو سینیٹرز اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی پہنائیں گے تاج۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار آصف زرداری ہیں۔ ان کا مقابلہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی سے ہوگا۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ ممبر الیکشن کمیشن پارلیمنٹ ہاؤس میں پریزائڈنگ افسر کی خدمات سر انجام دیں گے۔ 4 بجے ووٹنگ کا وقت مکمل ہوگا، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ گنتی کا عمل مکمل ہوتے ہی جیتنے والے امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ نو منتخب صدر سے اتوار کو چیف جسٹس آف پاکستان عہدے کا حلف لیں گے۔ صدارتی انتخاب میں کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کے وفد سے معذرت کر لی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے صدارتی انتخاب کے لیے حمایت کی درخواست کی تھی، جس پر مولانا نے کہا کہ پارٹی کا فیصلہ ہے، صدارتی الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے۔ اس فیصلے سے محمود خان اچکزئی کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ کے لیے عزت ہے، پارٹی کے سامنے آپ کی درخواست رکھوں گا، پارٹی فیصلے کا پابند ہوں۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کی محمود خان اچکزئی کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ صدارتی الیکشن آج ہی ہوگا۔ محمود اچکزئی کا کہنا تھا، ملک پر رحم کریں، یہ اسمبلی نہیں چل سکتی، پارلیمنٹ کے سینئر ممبران کی کمیٹی بنائیں، الیکشن اور سیٹوں سے متعلق 7 دن میں حل نکل آئے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے دوست نواز شریف آپ کو ووٹ دیں گے؟ تو اچکزئی بولے کہ نواز شریف کا دل کرتا ہوگا کہ محمود اچکزئی کو ووٹ دے۔ اس ملک پہ رحم کریں، اب بھی وقت ہے، یہ چارج اسمبلی یہ نہیں چل سکتی۔ عمران خان کی پارٹی نے آزادانہ الیکشن لڑے، درجنوں لوگ ان کے کامیاب ہوئے۔ پارلیمنٹ کے سینئر ترین ممبران کی کمیٹی بنائی جائے، ربانی صاحب سینیٹ کے، شیخ مشاہد حسین ان کی پارٹی کے سینئر لوگ، مولانا صاحب، ہم مل بیٹھ کے بات کریں الیکشن کے متعلق، سیٹوں کے متعلق۔ ود ان 7 days ان تمام مسائل کا حل نکل آئے گا۔ آپ کے دوست نواز شریف صاحب آپ کے بہت اچھے دوست، میرا ایمان ہے کہ اس کا دل بھی کہتا ہوگا کہ محمود کو ووٹ دو۔ بلاول بھٹو آصف زرداری کے لیے ووٹ مانگنے مریم نواز کے پاس پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا بلاول نہ بھی آتے تو بھی ووٹ آصف زرداری کو دیتے۔ بلاول بولے والد آپ کا ایسا خیال رکھیں گے جیسا میرا رکھتے ہیں۔ والد کے لیے ووٹ مانگنے آئے، اپنے والد کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ویسے ہی آپ کا خیال رکھے گا جیسے وہ میرا خیال رکھے۔ ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پیدا ہوا ہے اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کی ذہنیت نے یہ تقسیم پیدا تو کیا، لیکن حل ہم نے مل کے کرنا ہے۔ ہم اب ایسے آگے بڑھے کہ ہم اس نفرت اور تقسیم کا جو ماحول پیدا ہوا ہے اس کو ہم دفن کر سکیں۔ اگر آپ ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو پی ایم ایل این آپ کو ووٹ دیتی۔ الیکشن کے ریزلٹس کے بعد ساری جماعتیں سوائے ایک جماعت کے، جس کو بلاول نے رائٹلی کارٹونز کہا تھا، وہ کارٹون نیٹ ورک جو ہر وقت چلائے رکھتے ہیں، سیریس مائنڈڈ جتنی بھی جماعتیں ہیں ملک کی بہتری چاہتی ہیں، مسائل اتنے سیریس ہیں، اتنے گمبھیر ہیں، کوئی جماعت اکیلے اس کا حل نہیں کر سکتی۔ خوشائن بات یہ ہے کہ ایک سیاسی شخصیت آ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے گی۔ آصف علی زرداری صاحب کی اپروچ ہے، میرے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے ان کا، چیلنجز کو، سیاسی اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھتے ہیں۔ شکر ہے قوم کی جان چھوٹے گی اس آئینی عہدے کو پچھلے 5 سال آئین شکنی ہوئی ہے، اس سے پوری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا۔ آصف زرداری نے باریکی سے مسلم لیگ نون کا کام اتارا۔ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں لیکن کام پورا ہونے پر دھکا بھی دے دیتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فیصل بابرہ کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو۔ زرداری صاحب کا آئینی عہدے لے لینا یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ ان کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ لے کے چلتے ہیں، اور ان کی یہ بھی کوالٹی ہے کہ وہ جب سپنج میں سے پانی نچوڑ لیتے تو اس کو پھینک بھی دیتے۔ زرداری صاحب نے بہت باریکی سے کل کام اتارا ہے، اور انہوں نے کہا آئنسٹائن نہیں گھبرایا تھا، شہباز صاحب بھی نہیں گھبرائیں گے، یہ تھپکی لگائیں گے، آئنسٹائن کو لے جائیں گے، پھر دھکا دے کھینچ لیں گے اور ایونچولی دھکا دے دیں گے۔ یو کی ناٹ مائنس پیپلز پارٹی ان دا لانگر رن ان دا گیم۔ پیپلز پارٹی اسٹرنگز بھی رکھے گی، پش اینڈ پل چلتا رہے گا اور اینڈ میں پش ہو جائے گا اور یہ بھٹا بیٹھ جائے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کو ایوان صدر میں مسلح افواج کے دستے نے الوداعی گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب میں خاتون اول سمینہ الوی بھی موجود تھیں۔ ڈاکٹر عارف الوی نے ایوان صدر کے عملے سے فردن ملاقات کی۔ ڈاکٹر عارف الوی نے ستمبر 2018 کو صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔
इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने की वजह से सदर अलवी ओहदा सदारत पर 6 माह से जायद बराजुमान रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने बलूचिस्तान के इलाके आवरान में कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा, बलूचिस्तान के गयूर अवाम हर मुश्किल में डटे रहे, बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। वक्त एक ब्रेक का। के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने शोर शराबे में हलफ उठाया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, उन्हें पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से कोई हुक्म नहीं मिला। पंजाब असम्बली में भी खवातीन और अकलियतों की 24 नशिस्तों पर नून लीग के अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का ऐवान में एहतजाज और शोर शराबा। बानी पीटीआई की तस्वीर के साथ स्पीकर डायस के सामने एहतजाज किया। ये 76 साला उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? वक्त आ गया है उठ खड़े हों और कड़वे फैसले करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, विपाक में तनख्वाहें उधार से दी जाती हैं। वजारतों में कोई चाय पीता है तो वो भी उधार का है। मुल्क में एक माफिया है जो मईशत को तबाह कर रहा है। खबर आपको देंगे, कराची कुरंगी अवामी कॉलोनी में गुज़श्ता माह फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून चल बसी। दुकान पर फायरिंग से 38 साला खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। खातून शौहर के हमरा वेल्डिंग की दुकान पर गई थी, जहां डकैती हुई। 27 फरवरी को डकैती के दौरान दुकानदार कासिम और हारिस पीर जख्मी हुए थे। रवां साल कराची में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से 38 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक 38 अफराद में 4 खवातीन और 1 बच्ची और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। कुरंगी अवामी कॉलोनी में गुज़श्ता माह फायरिंग से जख्मी होने वाले खातून चलबसी। अदनान राजपूत से मजीद जानेंगे। अदनान, आगा कीजिएगा इस खबर से मुतल्लिक मजीद। जी अदनान, बताइएगा इस बारे में। अदनान से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि कुरंगी अवामी कॉलोनी में गुज़श्ता माह फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून चल बसी। दुकान पर फायरिंग से 38 साला खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। अदनान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अदनान, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये कुरंगी अवामी कॉलोनी में गुज़िश्ता माह दुकान पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद के जख्मी होने का वाकया सामने आया था। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जख्मी खातून 38 साला साइमा दौरान इलाज दम तोड़ गई है, जबकि मकसूला गुज़िश्ता रोज अस्पताल में इंतकाल हुआ है। मकसूला का पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मकसूला 27 फरवरी के रोज लोहे के गेट वेल्डिंग की दुकान पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुई थी। मकसूला खातून अपने शोहर कामरान की हमरा दुकान पर गई थी, जबकि डाकुओं की फायरिंग से 2 दुकानदार कासिम और हारिस भी वाकई में जख्मी हुए थे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और मतला आबर आलूद रहेगा। गवादर, केच, तुर्बत, आबरान, लसबेला, खुजदार और कल्लात में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। रमजान मुबारक की आमद से कबल खजूर की कीमत में इजाफा कर दिया गया। चांद नवाब की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक से कबल ही खजूरों की मांग में इजाफा। खजूर मार्केट में अजवा, ज़हरा, इराकी बसरा, अंबर, कलमी और दीगर खजूरें दुकानों पर सजा दी गयी। ऐसे में मुनाफाखोरों ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। खजूरों की कीमतों में 100 से 200 रुपए फी किलो बढ़ा दी। दुकानों पर खरीदारों का रश तो है, मगर शहरी दाम सुनकर कानों को हाथ लगा रहे हैं। सब महंगी है, जो बंदा बोलता है सस्ती है वो भी रमजान में डबल रेट होते हैं उसके। खजूर क्या खाएंगे, नमक के साथ मुश्किल हो गया अब तो रोजा खोलना। बस हुकूमत को यही इंतजार करेंगे कि थोड़ी महंगाई कम करे। रमजानों की आमद है तो इसी वजह से ये महंगा कुछ लग रहा है या कर दिया इन लोगों ने। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के बायस खजूर की फसलों को नुकसान पहुंचा। पैदावार कम होने की वजह से महंगी खरीदी हुई है, जिसके बायस कीमतों में इजाफा किया। वो तो माल आगे से महंगा रहे, इस वजह से महंगा होता है। पहले से महंगाई ने लोगों का
कमर तोड़ा तो अभी तो हर बंदे का गुंजाइश नहीं है। शक्कर का हमारा तकरीबन 4 लाख टन माल खराब हुआ है बारिश की वजह से, इस वजह से इस पे ज्यादा जोर है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इस बढ़ती हुई महंगाई की रोकथाम के लिए इकदाम करे और रमजान मुबारक से कबल अशिया खुल्दोनोश खास तौर पर खजूर की बढ़ती हुई कीमतों का जायजा लिया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रमजान मुबारक की आमद से पहले ही खजूरों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद निशान के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। जामिया कराची में बैनुल कुलियाती स्पोर्ट्स गाला 2024 खत्म हो गया। इख्तितामी तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज, अजहर अली, खेलों से ताल्लुक रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। अनवर खान की रिपोर्ट। जामिया कराची में होने वाली इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स गाला की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद जदाकी का कहना था कि जामियात में निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों को भी अहमियत हासिल है। यूनिवर्सिटीज के अंदर सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होती है, को कैरिकुलम होती है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स का कल्चर पूरे पाकिस्तान में प्रमोट करने की ज़रूरत है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज कहते हैं कि मेहनत पर तवज्जो दें, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप मेहनत करेंगे ग्राउंड के अंदर, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपने सिर्फ ग्राउंड में मेहनत करनी है, अल्लाह पे यकीन रखना है और इंशाल्लाह हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। गैर निसाबी सरगर्मियों में 40 मुख्तलिफ शोबाजात की 156 टीमों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 4,500 से ज़ायद तलबा और तालिबात गैर निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा बने। हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर स्पोर्ट जावेद अली मेमन ने कहा कि बहुत जल्द जामिया कराची को एक स्टेट ऑफ आर्ट अकेडमी का तोहफा दिया जाएगा। अकेडमी जो है हम कराची यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं और उसका जो है ग्राउंड ब्रेकिंग तो नहीं हुआ, लेकिन काम स्टार्ट हो चुका है। मैं समझता हूँ कि ये जो है बच्चों के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल होगी, स्टेट ऑफ आर्ट। तकरीब के अख्तिताम पर मुख्तलिफ खेलों में कामयाबी हासिल करने वाली टीमों में इनामात तकसीम की गई। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। पाकिस्तान में नामसाइद हालात के बावजूद खवातीन जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। खवातीन का कहना है सिर्फ आलमी दिन मनाने से खवातीन के मसाइल हल नहीं होंगे, इसके लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। लाहौर से मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट। में 52% आबादी ख्वातीन की है, ताहम निस्फ से ज्यादा आबादी को वो सहूलियात मुयस्सर नहीं जो मुहज़्ज़ब ममालिक में ख्वातीन को दस्तयाब हैं। इसके बावजूद जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ख्वातीन मर्दों से बहुत आगे हैं। पाकिस्तान में औरत को या हमारे मुआशरे में वो औरत को मुकाम नहीं दिया जाता जिसकी वो सही हकदार है। वेस्ट की तरफ अगर आप देखें तो औरतों के बहुत हकूक हैं, बल्कि मर्दों से ज़्यादा उनके हकूक हैं और उनको वो दिए भी जाते हैं। हर शोबे में ख़वातीन आगे जा रही हैं और मैनेजमेंट जो है वो भी ख़वातीन सबसे अच्छी करती हैं, क्योंकि घर स्टार्ट होता है ख़वातीन से, माँ की गोद से परवरिश भी स्टार्ट होती है। तो आई थिंक ख़वातीन जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए। ख्वातीन का कहना है कि सिर्फ आलमी दिन मनाने से ही ख्वातीन के मसाइल हल नहीं होंगे, इसके लिए अमली इक़दामात भी करने चाहिए। ये दिन मनाते हैं तो ये इस पे काम क्यों नहीं करते? ख्वातीन हर चीज में आ गया, तालीम में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में। हुकूमत को चाहिए कि वो इन्हें अपॉर्चुनिटीज दें कि वो और आगे से आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ख्वातीन को मर्दों के शाना बिशाना लाने के लिए कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जे, मुलाजमतों में स्पेशल कोटा समेत मुख्तलिफ सहूलियात भी देना होंगी। कैमरामैन तनवीर हाशमी के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज, लाहौर। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर खानेवाल में भी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बताएंगे साजिद खान अपनी रिपोर्ट में। भर की तरह खानेवाल में भी 8 मार्च यौम खवातीन पर जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम रैली का इनकाद किया गया। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर और DPO ने की। इनके अलावा रैली में मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट इदारों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक खवातीन का कहना था कि खवातीन किसी भी सोसाइटी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। रैली में मुल्क व कौम के लिए खिदमत सर अंजाम देने वाली खवातीन को सलाम पेश किया गया। वुमेन्स जो हैं किसी भी सोसाइटी की बैक बोन्स हैं और वो उसके बगैर किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि औरतों का आलमी मार्च 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसमें औरतों की प्रोटेक्शन के लिए ये रैली निकाली जाती है, जिसमें औरतों को प्रोटेक्शन दी जाती है और ये बताया जाता है किसी भी औरत को कोई भी किसी भी मसले पर अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा या प्रोटेक्शन नहीं मिल रही तो वो उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ भी बनाया गया है, उसमें आकर हमें बताएं और उनको बिल्कुल हिफाजत
की जाएगी उनकी। रैली जिना लाइब्रेरी से शुरू होकर डीपीओ ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। रैली में शरीक खवातीन का कहना था कि पाकिस्तान में फैसला साजी समेत हर शोबे में खवातीन का किरदार और तादाद बढ़ना खुश आइंद है। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। कराची प्रेस क्लब पर खवातीन के आलमी दिन की तकरीब, सहाफत, सेहत, तालीम, अदब, खेल, कॉर्पोरेट, सकाफत और समाजियात समेत मुख्तलिफ शोबों में खवातीन को अवार्ड दिए गए। इशरत खान की रिपोर्ट। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से कराची प्रेस क्लब ने अपनी रिवायत को जारी रखते हुए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक खवातीन को एक छत तले जमा किया। खवातीन ने इस दिन की मुनासबत से इजहार ख्याल भी किया। कामयाबी के सफ़र के लिए एक धपकी, एक अच्छा जुमला, एक मौका। मुझे जिस कैटेगरी में अवार्ड मिला है वो बोरा कम्युनिटी जो है उसमें मैं पहली ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूँ। कराची प्रेस क्लब ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ना सिर्फ जर्नलिस्ट कम्युनिटी बल्कि जो सोशल वर्कर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, उन तमाम फील्ड्स में जो खवातीन टैबूज़ को तोड़ के आगे निकल रही हैं, कुछ अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। खवातीन ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन अभी इस मैदान में बहुत तरक्की करने की, बहुत काम करने की जरूरत है। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शोएब अहमद का कहना था कि ये प्रोग्राम आज के दिन कराची का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सहाफ़ी, अदीब, सोशल वर्कर, कॉर्पोरेट सेक्टर, स्पोर्ट्स, तमाम सेक्टर्स में हमने जो नुमाया खिदमत अंजाम दिए ख्वातीन ने, उनको हमने यहाँ मदऊ किया है, जिसमें ख्वातीन की जो जद्दोजहद है उसको जो है नुमाया किया जाएगा। प्रेस क्लब पर मुनक्किद इस तकरीब से अंदाजा होता है खवातीन अपने हकूक से बेखबर नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर कराची में जर्मनी, अरब अमारात और चीन के कौंसल खानों में तकरीब हुई। सिफारतकारों का कहना था कि किसी भी मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार अहमियत का हामिल है। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। जन से है तस्वीर कायनात में रंग। यौम निस्वा के आलमी दिन के मौके पर खवातीन की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ कौंसल खानों में तकरीब का इनेकाद किया गया। अमाराती कौंसल खाने की जानिब से भी खवातीन के एजाज में महफिल सजाई गई। किसी मुल्क का तरक्की देखना है, खवातीन जरूर नजर आएंगे। और चौथी सी मिसाल हमारा UAE का, हमारा मुल्क है। अगर आप मद्देनजर देख के हर जगह में, हर शुबे में आपको नजर आएंगे खवातीन है। जर्मन कौंसल खाने में मुनक्कदा तकरीब में कौंसल जनरल का कहना था कि किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में खवातीन का अहम किरदार है। चीनी कौंसल खाने में तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल का कहना था कि चीनी हुकूमत ने हमेशा खवातीन के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अहमियत दी है। कैमरामैन ज़ीशान अहमद के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज, कराची। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, मुर्तज़ा वहाब ने रेड लाइन बस मंसूबे पर काम बंद होने का एतराफ़ कर लिया। मेयर कराची ने यह भी इंकशाफ किया कि सनत का शहरी और वाटर बोर्ड इंतजामिया पानी चोरी में मुलविस है। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। कराची में सनतकारों से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने रेड लाइन बस मंसूबे पर काम रोक दिया है। उन्होंने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस पर डॉलर 150 रुपए का था, अब डॉलर का रेट 280 रुपए हो गया है, जिसकी वजह से मंसूबे की लागत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अब नई हुकूमत आ गई है, जल्द इस मामले को हल कर लिया जाएगा। रेड लाइन जो कि यूनिवर्सिटी रोड वाला है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, इट्स अ मेस। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब उसकी प्रोक्योरमेंट हुई थी उस वक्त डॉलर का रेट 150 था, अब वो 300 का हो गया है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने मना कर दिया, कहते जी हम नहीं कर सकते, हमारे बारे में नहीं आता। इसको हम कोशिश करें, हम नई गवर्नमेंट आ गई है, इसको बैठ के रिजॉल्व करें, कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। शहर में आवारा कुत्तों के खात्मे के हवाले से मेयर कराची ने कहा कि जल्द शहर में कुत्तों की नसबंदी के 4 सेंटर बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से बजट में सिंध हुकूमत ने रकम भी मख्तस कर दी है। जिस तरह बड़े पैमाने पर ये आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, तो फिलहाल जो कार्रवाई हो रही है वो न्यूट्रिंग की जा रही है इन कुत्तों की, यानी कि वो और बच्चे पैदा ना कर सके। कराची में मुख्तलिफ जगहों पे सेंटर्स स्टैब्लिश हमने करना शुरू कर दिए हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वाटर माफिया वाटर बोर्ड के मुकाबले पर शहर में पानी फराहमी का मतवादी निजाम चला रहा है, जिसके खिलाफ जल्द ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। अमेरिका ने फलस्तीनियों को इमदाद पहुंचाने के लिए गजा के नजदीक बंदरगाह बनाने का ऐलान किया है। स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि नए ऑपरेशंस में इंसानी बुनियादों पर काम करने वाले इदारों को भी साथ मिलाएंगे। सदर पुतिन को पैगाम है कि हम हार नहीं मानेंगे, यूक्रेन के मसले पर किसी के सामने नहीं झुकेंगे, जो कुछ 6 जनवरी को हुआ वो कबूल नहीं करेंगे।
سیاسی افراتفری پیدا کرنے والوں کے لیے امریکہ میں اب کوئی جگہ نہیں۔ خطاب کے دوران کیپٹل ہل کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد نے مظاہرہ کیا۔ یہ تھی بلیٹن میں شامل اب تک کی خبریں۔